Welcome to the video of Bulbul Logbook. The Bharat Scouts and Guides Bulbul section. बुलबुल के समूह को बुलबुल फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। यह चित्र को देखकर आप बता सकते हैं ये कौन सा पंछी है? हाँ, आपने सही पहचाना, यह है बुलबुल। एक लड़की जो भारत की नागरिक हो, जिसकी आयु 5 वर्ष हो गई हो तथा 10 वर्ष पूरे न हुए हो, वह बुलबुल कहलाती है। Scheme of advancement of a bulbul. 5 years registered as a bulbul aspirant, that is joining of the bulbul. बुलबुल को सर्वप्रथम प्रवेश की परीक्षा पास करनी होती है। Bulbul has to get her name registered as a recruit. The recruit shall complete the Pravesh requirements. On completion of the Pravesh requirements, the recruit makes the Bulbul promise to the flock leader and is invested as a Bulbul. That is called investiture. The Pravesh Bulbul will work for at least 3 months to qualify for Komal Pank. Komal Pank Bulbul will work for at least 3 months to qualify for Rajat Pank badge. Now Rajat Pank Bulbul will work for 9 months to qualify for Swarna Pank badge. Swarna Pank Bulbul will work for 9 months to qualify for Hirak Pank. A Hirak Pank Bulbul, having earned totally 6 proficiency badges, she may be awarded a special badge called Golden Arrow before completing 10 years of age. बच्चों यह देखिए, मेरे पास एक बच्चे का लॉगबुक है। कब लॉगबुक? ये देखिए, इस तरह एक कॉपी आपको लेना है। यहाँ पे देखिए रस्सी बंधा हुआ है, जो प्रैक्टिकल कॉपी होता है साइंस का। ये बच्चा वही लिया है। इसमें इस तरह रस्सी बांधा गया है। देखिए, इस तरह कवर पेज होगा। देख लीजिए इसको। इस तरह लिखेंगे अपना नाम, स्काउट गाइड का लोगो लगाएंगे और इसमें आपका नाम, फोटो, आपका बायोडाटा भरेंगे। फिर शुरू होगा प्रवेश। इस तरह आप इसको लिखेंगे। और ये देखिए मेरे पास और छोटे छोटे कॉपी है। पहले इसको देख लेते हैं। ये लॉगबुक देखिए, यह एक कब का लॉगबुक है। इससे पहले देखते हैं। यह बनाया है आर्यन पटजोशी ने। तो आप इसको देख के कुछ सीख सकते हैं और इससे भी बेहतर आप बना सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में व्हाइट पेज है, वहां पे फोटो चिपकाना है। फोटो चिपका सकते हैं और सुंदर से इसको सजा सकते हैं। देखिए बच्चा कितना मेहनत किया है। तो आपको इस तरह बुलबुल का लॉगबुक भी बनाना है। और बुलबुल का लॉगबुक कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। इसको भी एक बार देख लीजिए। कलर पेन, स्केच पेन, ये सब भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए अपना फोटो भी लगा दिया है ये। और इस तरह आपको अपना लॉगबुक बनाना है। ये इनको एक सर्टिफिकेट मिला था। योगा एक्टिविटी किया है और उसका फोटो भी लगा दिया यहाँ पे। इस तरह आप लॉगबुक बनाएंगे। इसके साथ आपको और इस तरह का कॉपी बनाना है। इसको बोलते हैं प्रोफिशिएंसी बैज। ये प्रोफिशिएंसी बैज कॉपी है। इसने 6 प्रोफिशिएंसी बैज का कॉपी बनाया है। ये देख लीजिए, इस तरह बनाएंगे। अभी आपने एक कब का कॉपी देखा,
कब का लॉगबुक। अभी हम आपको बुलबुल का लॉगबुक दिखा रहे हैं और बुलबुल का लॉगबुक दिखाने के लिए मैं श्रीमती ज्योत्सना रानी बिश्नोई मैडम से अनुरोध करता हूँ। Hello Bulbuls, I am your Jyotsna madam, a flock leader. Here I am with you with a sample of logbook. How to make a logbook, Bulbul logbook. This is the cover page. Next the biodata. This is the Pravesh syllabus. Next the Komal Pank syllabus. Rajat Pank syllabus. Next the Swan Pank syllabus. The last one, this is Hirak Pank syllabus. You have to write down everything in your logbook. Write down everything in your logbook. Thank you, Jyotsna madam. Dear Bulbuls, now see the Bulbul logbook made by Adya Ahna Swain and try to make like this. This is Pravesh, Bulbul Pravesh, Tara story. You have to paste some pictures, then draw some pictures, write promise, Bulbul greetings, Bulbul salute, left handshake, daily prayer. This is investiture ceremony photographs. Then write the syllabus of Komal Pank, activities of Komal Pank. You have to write. First write syllabus. These are the activities. This is the certificate. Then Rajat Pank activities. Rajat Pank certificate. Then Swarna Pank activities. Like that you have to write up to Hirak Pank syllabus and activities of Hirak Pank. Let us see how to make a Bulbul logbook and what to write. अब आपको इस तरह बनाना है। ऊपर लिखेंगे केबीए स्टेट, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, लॉगबुक, बुलबुल सेक्शन। देन राइट नेम ऑफ द बुलबुल, यानी आपका नाम, नेम ऑफ सिक्स, नेम ऑफ फ्लॉक, नेम ऑफ यूनिट। ये आपके फ्लॉक लीडर आपको बताएंगे। देन राइट बायोडाटा, नेम ऑफ बुलबुल, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम ऑफ फ्लॉक, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. Then there is a table. Write the dates of registration, passing Pravesh, investiture, Komal Pank, Rajat Pank, Swarna Pank, Hirak Pank, and write the details of proficiency badge. Now it's Pravesh. This is the syllabus of Pravesh. Pravesh requirements: be able to tell the story of Tara, understand the meaning of Bulbul law, Bulbul motto, Bulbul promise, Bulbul greetings, demonstrate correctly Bulbul salute and left handshake, offer daily prayers as told by parents, do a daily good turn at home, be able to sing
बुलबुल प्रेयर। अभी कॉपी में लिखेंगे बी एबल टू टेल द स्टोरी ऑफ तारा। तो तारा की कहानी लिखने के लिए पहले कहानी को सुनते हैं। तारा की कहानी। तारा नाम की एक छोटी लड़की थी। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था तथा वह सुंदर भी थी। तारा के माता पिता बड़े मृदु स्वभाव के थे। इतने होते हुए भी वह बहुत दुखी रहती थी। यह सोचती कि यदि वह एक राजकुमारी होती तो उसे कोई काम न करना पड़ता और आराम के साथ रहती। एक बार उसका छोटा भाई बीमार हो गया, इसलिए उसकी माँ उसकी देख रेख में लगी रहती और घर का सारा काम यहीं पड़ा रहता। कई दिनों तक तो घर में झाड़ू तक न लग पाई। तारा कामचोर थी। एक दिन वह स्कूल से पढ़कर लौटी तो काम से बचने के लिए एक बगीचे में चली गई। वहां दुखी मन से बैठ गई। इतने में ही उस बगीचे में एक बुलबुल आई। बुलबुल ने तारा से पूछा, छोटी बच्ची, आप यहाँ क्या कर रहे हो, अकेले एक पेड़ के नीचे? तारा ने कहा, मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न सोने की जंजीर है। मैं स्कूल से पढ़कर जैसे ही लौटती हूँ तो मुझे घर पर काम करना पड़ता है। इस तरह मुझे कोई सुख नहीं है। बुलबुल ने उससे कहा, हाँ, यह तो बड़े दुख की बात है। आओ तुम मेरे साथ चलो और थोड़ी देर सैर कर लो। इतना कह करके बुलबुल ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि वह एक बहुत बड़ी चिड़िया बन गई। फिर उसने तारा से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और फिर हम कुछ लोगों के पास चलेंगे। तारा बुलबुल की पीठ पर सवार हो गई। मैदान और जंगल के ऊपर जाते हुए तारा ने हरे भरे खेतों को देखा। बुलबुल बोली, तारा, तुम मेरी दाईं बगल में हाथ डालो, उसमें तुमको भभूत मिलेगी। उस भभूत को अपने और मेरे माथे पे मल दो। ऐसा करने से हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। तारा ने भभूत लेकर दोनों के माथे पर मल दी। थोड़ी देर पश्चात वो दोनों एक महल की छतरी पर उतरी तथा एक सजे सजाए कमरे में पहुंची। वहां एक छोटी सी लड़की मखमल के गद्दे पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े रेशमी थे। गले में मोतियों की माला पड़ी हुई थी। एक दासी उसे तरह तरह की कई मालाएं दिखाए हुए कह रही थी, आपके पिताजी ने कितने कीमती गहने आपको दिए हैं। राजकुमारी ने कहा, हाँ, कीमती तो हैं, लेकिन इनकी बनावट अच्छी नहीं लगती है, हट तो जरा। इसके पश्चात एक दूसरी दासी कीमती साड़ी लिए हुए वहां आई और राजकुमारी से बोली, आपकी माताजी ने आपके लिए गुलाबी साड़ी भेजी है। राजकुमारी ने कहा, हाँ, अच्छी तो है, परंतु मुझे नीले रंग की साड़ी अधिक अच्छी लगती है, इसे इधर डाल दो। राजकुमारी ने दुखी मन से कहा, मैं एक साधारण परिवार की लड़की क्यों न बनी। मैं और लड़कियों के साथ स्कूल जाती, छुट्टी के दिन बाजार जाकर स्वयं अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदती, घर का काम काज करती और खूब खुश रहती। दासी ने कहा, राजकुमारी जी, यदि आप काम करेंगी और झाड़ू पोछा लगाएंगी, पानी भरेंगी तथा चक्की पीसेंगी तो आपकी साड़ी खराब हो जाएंगी। यदि आप खाना बनाएंगी तो धुएं से आपकी आंखें और गहने खराब हो जाएंगे। चक्की पीसने से कंगन खराब हो जाएंगे। राजकुमारी झंझलाते हुए बोली, मुझे साड़ी लेनी नहीं चाहिए, मैं बैठी बैठी परेशान हो गई हूँ। यदि कोई काम करने को मिले तो उससे मन तो लगा रहेगा। बुलबुल ने तारा से कहा, यह लड़की खुश नहीं दिखाई देती, क्या तुम इसको खुश समझती हो? चलो अब किसी और से मिलते हैं। बुलबुल तारा को लेकर एक दूसरे नगर में गई और वहां एक महल पर पहुंची। बुलबुल ने तारा को बताया कि यहाँ एक और राजकुमारी रहती है, चलो उसके भी हालचाल देखें। जब वो महल के अंदर गई तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सजे सजाए कमरे में रानी और उसकी राजकुमारी बात कर रही थी। रानी ने पूछा, प्यारी बेटी, बताओ तो आज का तुम्हारा दिन सुख में बीता? राजकुमारी ने उत्तर दिया, हाँ, सुबह मैंने अपना पाठ याद किया, फिर घूमने गई तो मुझे एक लड़की मिली जो भूखी थी। आपने मुझे जो रुपया मिठाई खाने के लिए दिया था वह मैंने उसे दे दिया। फिर मैं तीसरे पहर अस्पताल पहुंच गई। वहाँ मरीजों को कुछ फल बांटे, उन्हें पाकर वे बड़े खुश हुए। अस्पताल से लौटकर हाथ पैर धोकर रसोई घर में जाकर रोटी बनाई।
माताजी, अब आप बताएं कि आज आपने सारा दिन क्या किए? आज तो आप काफी थक गई लगती हैं। रानी ने बताया, आज पूरे दिन में काम में ही लगी रही हूँ, कुछ थक सी गई हूँ। बुलबुल ने तारा से कहा, चलो और एक घर की ओर चलते हैं। रास्ते में तारा ने बुलबुल से कहा, मुझे यह रानी और राजकुमारी सबसे अच्छी लगती है। मुझे आज ही मालूम हुआ कि अच्छी रानियां भी घर का कामकाज करती हैं। बुलबुल ने हंसते हुए कहा, तुम अब नई नई बातें सीख रही हो। बुलबुल अपनी पीठ पर तारा को लादे हुए फिर उड़ी और एक छोटे से मकान की छत पर उतर गई। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वह घर एक गरीब आदमी का है, फिर भी उसका घर बहुत साफ सुथरा है। वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ एक चारपाई पर लेटी हुई है। उसकी एक लड़की जो अवस्था में तारा के बराबर की थी, रसोई में खाना बना रही थी। इतने में बाहर से आवाज आई, रानी कहाँ हो? लड़की ने उत्तर दिया, पिताजी मैं घर में ही हूँ। मैंने सारे दिन काम किए, घर की सफाई की, कपड़े धोए, अब खाना पका रही हूँ। खाली बैठने के बजाय मुझे काम करने में बड़ा आनंद आता है। लड़की की यह बात सुनकर तारा ने कहा, मुझे शीघ्र ही घर ले चलो बुलबुल। मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखूंगी, कपड़े धोऊंगी, खाना पकाऊंगी। बुलबुल ने तारा को अपनी पीठ पर बिठाया और आंखें बंद करने को कहा और कुछ देर बाद बुलबुल ने तारा से आंख खोलने को कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोल दी, देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। तारा की माँ ने तारा से पूछा, बेटी अब तक तुम कहाँ थी? तारा ने बताया, माँ मैं सुखी होने की चिंता में थी, परंतु अब मुझे मालूम हुआ कि सुख केवल घर पर ही मिल सकता है। तारा तुरंत उठी और अपने घर को संभालने में लग गई। उसने घर में झाड़ू लगाई और बर्तन साफ किए। उसने अपनी माँ को बताया, देखो माँ, मैं जान गई हूँ कि सुख रेशमी साड़ी में और गहनों में नहीं मिल सकता है। सुख तो घर में कामकाज करने से तथा दूसरों की सेवा करने से प्राप्त होता है। तारा अब एक बहादुर लड़की बन गई थी। वह घर का कामकाज करती, समय पर स्कूल जाती तथा वहाँ अपनी सहेलियों की यथासंभव मदद करती और सदैव प्रसन्न रहती। बुलबुल भी उसकी सहेली बन गई थी। वह घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाती और तारा को घर पर खुशी के साथ काम करते हुए देखती और खूब पढ़ते लिखते देखती। वह बहुत खुश होती और डाल पर बैठी हुई अपनी सुरीली तान से सबका मन मोह लेती। बच्चों, आपने तारा की कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। अब कॉपी में उसको लिखेंगे। कहानी को कॉमिक्स की तरह भी लिख सकते हैं। तारा नाम की एक छोटी लड़की थी। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था तथा वह सुंदर भी थी। तारा के पिता माता बड़े मृदु स्वभाव के थे। इतना होते हुए भी वह दुखी रहती थी। वह सोचती कि यदि वह एक राजकुमारी होती तो उसे कोई काम न करना पड़ता और आराम के साथ रहती। तारा कामचोर थी। एक दिन वह स्कूल से पढ़कर लौटी तो घर के काम से बचने के लिए एक बगीचे में चली गई। वहाँ दुखी मन से बैठ गई। इतने में ही उस बगीचे में एक बुलबुल आई और एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। ओ छोटी लड़की, क्या बात है? क्या सोच रही हो? मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न सोने की जंजीर है। मैं स्कूल से पढ़कर जैसे ही लौटी हूँ तो मुझे घर पर काम करना पड़ता है। इस तरह मुझे कोई सुख नहीं है। तुम मेरे साथ चलो और थोड़ी देर सैर कर लो। इतना कहकर के बुलबुल ने अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि वह एक बहुत बड़ी चिड़िया बन गई। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और फिर हम कुछ लोगों के पास चलेंगे। तारा बुलबुल की पीठ पर सवार हो गई। बुलबुल ने अपने पंख फैलाए और तारा को लेकर उड़ गई। तारा, तुम मेरे दाएं बगल में हाथ डालो, उसमें तुमको भभूत मिलेगी। उस भभूत को अपने और मेरे माथे पर मल दो। ऐसा करने से हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। तारा ने भभूत लेकर दोनों के माथे पर मल दी।
थोड़ी देर पश्चात वे दोनों एक महल के एक कमरे में पहुंचे। वहाँ एक छोटी लड़की मखमल के गद्दे पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े रेशमी थे, गले में मोतियों की माला पड़ी हुई थी। आपके पिताजी ने कितनी कीमती गहने आपको दिए हैं। हाँ, कीमती तो है, लेकिन इसकी बनावट अच्छी नहीं लगती है। आपकी माताजी ने आपके लिए गुलाबी साड़ी भेजी है। अच्छी तो है, परंतु मुझे नीले रंग की साड़ी अधिक अच्छी लगती है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की क्यों ना बनी? मैं और लड़कियों के साथ स्कूल जाती, छुट्टी के दिन बाजार जाकर स्वयं अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदती थी, घर का काम करती और खूब खुश रहती। राजकुमारी जी, यदि आप काम करेंगी और झाड़ू पोछा लगाएंगी, पानी भरेंगी तथा चक्की पीसेंगी तो आपकी साड़ी खराब हो जाएगी। यदि आप खाना बनाएंगी तो फिर से आपकी आंखें तथा गहने खराब हो जाएंगे। चक्की पीसने से आपके कंगन खराब हो जाएंगे। मुझे साड़ी गहने नहीं चाहिए। मैं बैठे बैठे परेशान हो गई हूँ। यदि कोई काम करने को मिले तो उससे मन तो लगा रहेगा। यह लड़की खुश नहीं दिखाई देती। क्या तुम इसको खुश समझते हो? चलो अब किसी और से मिले। बुलबुल तारा को लेकर एक दूसरे नगर में गई और वहाँ एक महल पर पहुँची। यहाँ एक और राजकुमारी रहती है। चलो उसके भी हाल चाल देखें। जब वे महल के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सजे सजाए कमरे में रानी और उसकी राजकुमारी बात कर रही थी। प्यारी बेटी, बताओ तो आज का तुम्हारा दिन शुभ में बीता? हाँ, सुबह मैंने अपना पाठ याद किया, फिर मैं घूमने गई तो मुझे एक लड़की मिली जो भूखी थी। आपने मुझे जो रुपया मिठाई खाने के लिए दिया था वह मैंने उसे दे दिया। फिर मैं तीसरे पहर अस्पताल गई, वहाँ मरीजों को कुछ फल बांटे। उन्हें पाकर मैं बड़े खुश हुए। अस्पताल से लौटकर हाथ पैर धोकर रसोई घर में जाकर रोटी बनाई। माताजी, अब आप बताइए कि आज आपने सारे दिन क्या किया? आज तो आप काफी थकी हुई लग रही हैं। आज मैं काम में ही लगी रही हूँ, कुछ थक सी गई हूँ। चलो एक घर की ओर और चले। मुझे यह रानी और राजकुमारी सबसे अच्छी लगी। मुझे आज ही मालूम हुआ कि अच्छी रानियां भी घर का कामकाज करती हैं। तुम अब नई नई बातें सीख रही हो। बुलबुल अपनी पीठ पर तारा को लादे हुए फिर उड़ी और एक छोटे से मकान की छत पर उतर गई। भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वह घर एक गरीब आदमी का है, फिर भी उसका घर बहुत साफ सुथरा है। वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ एक चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी एक लड़की जो अवस्था में तारा के बराबर की थी, रसोई में खाना बना रही थी। इतने में बाहर से आवाज आई, रानी कहाँ हो? पिताजी, मैं घर में हूँ। मैंने सारे दिन काम किया है, घर की सफाई की, कपड़े धोए और खाना पका रही हूँ। खाली बैठने के बजाय मुझे काम करने में आनंद आता है। मुझे शीघ्र घर ले चलो बुलबुल। मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखूंगी, कपड़े धोऊंगी, खाना पकाऊंगी। बुलबुल ने तारा को अपनी पीठ पर बिठाया और आंख बंद करने को कहा और कुछ देर बाद बुलबुल ने तारा से आंख खोलने को कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। बेटी, अब तक तुम कहाँ थे? माँ, मैं सूखी होने की चिंता में थी, परंतु अब मुझे मालूम हुआ कि सूख केवल घर पर ही मिल सकता है। देखो माँ, मैं जान गई हूँ कि सूख रेशमी साड़ियों और गहनों में नहीं मिल सकता है। सूख तो घर में कामकाज करने से तथा दूसरों की सेवा करने से प्राप्त होता
तुरंत उठी और अपने घर को संभालने में लग गई। उसने घर में झाड़ू लगाई और बर्तन साफ किए। तारा अब एक बहादुर लड़की बन गई थी। वह घर का काम काज करती, समय पर स्कूल जाती तथा वहाँ अपनी सहेलियों की यथासंभव मदद करती और सदैव प्रसन्न रहती। बुलबुल भी उसकी सहेली बन गई थी। वह घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाती और तारा को घर पर खुशी के साथ काम करते हुए देखती और खूब पढ़ते लिखते देखती। वह बहुत खुश होती और डाल पर बैठी हुई अपनी सुरीली टांग से सबका मन मोह लेती। Now write, understand the meaning of Bulbul law, Bulbul motto, Bulbul promise, Bulbul greetings. The law for the Bulbul is, a Bulbul is obedient, a Bulbul is clean and polite. The motto for the Bulbul is, do your best, DYB. Bulbul promise, I promise to do my best, to do my duty to God and my country, to keep the Bulbul law and to do a good time every day. Bulbul greetings. The Bulbul greetings, the grand salute. The grand salute is given on special occasions when some distinguished visitors visit the flock. The Bulbuls form the ring, squat on their heels with two hands between the feet, fingers held as in salute, touching the ground, close each other. The visitors are led to the center of the ring. The Bulbuls all together start saying "toot" for 3 times. जब कोई सम्मानित व्यक्ति फ्लॉक का निरीक्षण करने आते हैं तब यह सम्मान दिया जाता है। बड़ा घेरा बनाने के लिए बुलबुल आपस में हाथ पकड़कर पीछे हटकर एक खुला घेरा बनाकर खड़ी हो जाती है। फ्लॉक लीडर के संकेत देने पर सभी बुलबुल एड़ियों पर बैठकर हाथों से सैल्यूट करती हैं। हाथों को पैरों के बीच में जमीन तक ले जाती है। अतिथि को केंद्र में देखकर सभी एक साथ बोलती हैं टू इट टू। प्रत्येक बार जब वो झुकती और टू कहती हैं तो जमीन को दोनों उंगलियों से छूती है। जब वे हु करती हैं तो वे हाथों की आवाज के साथ साथ ऊपर ले जाती है। तीसरी बार हवा में अधिक ऊंचा चिल्लाती है जिससे जोर की चीख हवा में गूंज जाती है। वे हवा में कूदती है, सिर के ऊपर ताली बजाती है और फिर कूदकर सावधान होकर चुप खड़ी हो जाती है, तब सैल्यूट देती है और बोलती है डू योर बेस्ट। All the bulbuls will stand in groups according to their flock and they will make sounds of their flock while making the circle. Example, for peacock flock, pihu pihu, for pigeon flock, guttar gu. This is one ring song in English and in Hindi. The sixer song, छक्का गीत। कुछ गीत लिखे हैं, इसको आप याद करेंगे और अपने छक्का के साथ गाएंगे, अपने सिक्स में गाएंगे। सैल्यूट सर्वथा सावधान की स्थिति में दिया जाता है। सैल्यूट देते समय सावधान होकर दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों को अंगूठों से दबाकर रखें और फुर्ती साथ हाथ को ऊपर लाएं। पहली उंगली के छोर से दाईं बांह के आखिरी किनारे को छुएं। मन में 1 2 3 गिनने तक रुकें, फिर आगे से हाथ को नीचे गिरा दें। नाउ लेफ्ट हैंड से टू गिव द हैंडशेक, extend your left hand with the thumb separated from the other 4 fingers. कप्स एवं बुलबुल तथा सभी स्काउट गाइड एक दूसरे से दायां हाथ मिलाते हैं। बच्चों, आपके माता पिता घर में पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान जिस प्रकार भी करते हो उनका आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। अपने घर में माता पिता द्वारा सिखाई गई दैनिक प्रार्थना करना परम कर्तव्य है। अतः आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता का अनुसरण करें और आपके घर में जो पूजा पाठ होती है वहाँ आप सीखेंगे और यहाँ पर आपका डेली प्रेयर लिखेंगे।
5 नंबर, डू ए डेली गुड टर्न एट होम। घर पर भलाई का काम। आप सबको एक एक भलाई का कार्य करना जरूरी है। भलाई का कार्य उसे कहते हैं जो बिना किसी लोभ, लालच, इनाम, शाबाशी प्राप्त किए दूसरों की मदद के लिए किया जाता है। भलाई का काम करते समय सुख का अनुभव होना चाहिए। ये सब काम आप कर सकते हैं और आप जो भी भलाई का कार्य करेंगे सबको इस लॉगबुक में यहाँ पर लिख के रखेंगे। अभी आपको लिखना है बुलबुल प्रेयर। इसको गाएंगे, याद करेंगे और इसको अपने लॉगबुक पे लिखेंगे। यह सब करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा प्रवेश पासिंग का और उसको यहाँ पे चिपकाएंगे। On completion of the Pravesh requirements, the recruit makes the bulbul promise to the flock leader and is invested as a bulbul. This ceremony is called investiture ceremony. Then the test for the Komal Pank. Komal Pank syllabus. First we will write the syllabus in the logbook. ये आप सिलेबस लिख दिए लॉगबुक पे। अब आप कोमल पंख का एक्टिविटी यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। नंबर 1, नेम द पर्सनल इफेक्ट्स गिवन हियर। आपके पास जो कपड़ा है, आप ड्रेस पहनते हैं या आपका कोई शूज होगा, उस सबको उसका फोटो यहाँ ड्राइंग कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। रेगुलर वॉशिंग एंड मेंटेनिंग कीप्स क्लॉथ्स क्लीन, टाइडी एंड मेक्स देम लास्ट लॉन्गर। Keep your clothes properly folded. आप अपने सामान को इस तरह सुंदर करके रख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Write good health habits. Example: take bath or showers every day with soap. Wash your hands before meals. इस तरह कुछ हेल्थ हैबिट्स आप लिखेंगे। टेस्ट सम पिक्चर्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स हियर। आप जो जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसका फोटो यहाँ चिपका सकते हैं। सीव ए बटन ऑन शर्ट और पैंट एंड एफिक्स हियर। आस्क योर मदर और सिस्टर टू शो यू हाउ टू थ्रेड नीडल एंड मेंड स्मॉल टीयर्स एंड सीव लस्ट बटन्स। लर्न टू प्रे बिफोर मील्स। भोजन से पहले प्रार्थना। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन करने से पूर्व ईश्वर का ध्यान किया जाता है। जो भी भोजन होता है पहले ईश्वर को समर्पित किया जाता है। तो आप अपने घर में जो प्रेयर करते हैं खाना खाने से पहले, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you God for everything. Here, write some good turn at home and at school. Good turns are the acts of kindness that are big or small, thoughtful things which give pleasure to others. आप जो अच्छा काम करेंगे यहाँ पे डेट है और उस कार्य का नाम इस तरह लिखेंगे। उसका एक डायरी बनाएंगे। Here, write the importance of the following exercises: knee bending, toe touching. Write its importance. Number 5, name the physical activities. Practice any two. Now say this activity. Yes, you are right. This is balance walk. This is throw and catch ball from 3 meters. This activity is hopping. This is skipping.
a collection 5 different leaves. Make a collection of 5 different leaves, paste and label them. Now 5 different flowers. Collect and paste and label them. Telling time. घड़ी छोटी बड़ी सभी प्रकार की होती है। हाथ की घड़ी, दीवार की घड़ी, टेबल घड़ी। घड़ी में एक डायल होता है, उस पर 1 से 12 तक संख्या बने होते हैं। उसमें 3 सुई होती है। तो इस तरह हम घड़ी को देख के पहचान सकते हैं और समय बता सकते हैं। घड़ी का कुछ गीत भी याद कर सकते हैं या उसको लिख सकते हैं कॉपी पे, जैसे टिक 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 मैं करती हूँ, कभी नहीं मैं थकती हूँ, समय बताना है मेरा काम, कभी नहीं लेती आराम। आप अपनी कॉपी में इस तरह घड़ियों का चित्र लगा सकते हैं और वहाँ पे समय लिख सकते हैं। मेक योरसेल्फ ए मॉडल क्लॉक विथ हैंड्स दैट मूव, यू विल सून बी एन एक्सपर्ट इन टेलिंग टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, whipping, reef knot और क्लोव हिच, ये आप प्रैक्टिस करके उसका फोटो लगा सकते हैं या उसको रस्सी में इस तरह बांध के यहाँ लगा सकते हैं और उसका यूज लिखेंगे। जैसे रीफ नट, इस दांत का उपयोग चोट लगने पर पट्टी बांधने के काम आती है। 2 बराबर मोटाई की रस्सियों को जोड़ने के लिए एवं पार्सल बांधने के लिए काम आती है। यूज इट टू टाई बंडल्स टू फास्टन ए स्लिंग। और दूसरा क्लोव हिच, हिच इज द नेम फॉर ए नट यूज्ड फॉर फास्टनिंग ए रोप टू ए पोस्ट। यह खूंटा, छप्पर, पेड़ तथा कॉलर का बैंडेज लगाने के काम आती है। 9. डेमोन्स्ट्रेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का प्रदर्शन करना है। A. क्लाइंब अप ए ट्री और ए रोप। आपके फ्लॉक लीडर जब होंगे वो अगर बोलेंगे तो आप ये करेंगे, वरना आप पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे या कोई रोप पे भी नहीं चढ़ेंगे। B. राइड ए बाइसाइकिल सेफली। रूल्स फॉर बाइसाइकिल सेफ्टी: ओबे ऑल ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स, राइड इन ए स्ट्रेट लाइन, डोंट डू स्टंट्स, बी अलर्ट फॉर अदर व्हीकल्स, स्पेशली फॉर कार्स। C. Write address and epic stamps on an envelope for posting. आप एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखना सीखेंगे और उसके ऊपर स्टैंप कैसे लगाते हैं, कितने रुपए का स्टैंप होता है, वो सब चिपकाएंगे और एक एक एनवेलप को आपके लॉगबुक के ऊपर चिपकाएंगे। What to do when the national flag is flown and the national anthem is sung or played? जब भी राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा हो तो सावधान की स्थिति में खड़ा होना चाहिए। यदि आप कहीं से आ रहे हैं और राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा है तो जहां हो वहीं सावधान की स्थिति में हो जाओ। झंडा फहराते समय जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो सभी को सावधान की स्थिति में रहना चाहिए। E. राइट द मीनिंग ऑफ द बैज गिवन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिचर। ये बैज आपको दिया जाता है, इसका नाम है मेंबरशिप बैज। When a badge is awarded to a bulbul at the time of investiture, she becomes a regular member of the flock. She will have to obey the law and promise she has taken. F. Use of basic communication device. आज के युग में टेलीफोन या मोबाइल का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप ऑनलाइन क्लास भी कर रहे थे मोबाइल के माध्यम से, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी जितना कम कर सके उतना अच्छा है। टेक परमिशन when you are using mobile phone. Be short in your talk. जब बहुत जरूरी हो तभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिए। और इसी पेज में आपको लिखना है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग यूज ऑफ टेलीफोन और मोबाइल फोन। नेशनल एंथम, यहाँ पे आप नेशनल एंथम लिखेंगे। DSG फ्लैग सॉन्ग या झंडा गीत, इसको याद करेंगे और याद करने के बाद इसको लॉगबुक पे सुंदर अक्षर में लिखेंगे। In this page, you have to write the name of your father, address, mobile number, mother name, address and mobile number. In this page, you have to write record of flock meetings attended.
आप जब फ्लॉक मीटिंग अटेंड करेंगे उसका रिकॉर्ड यहाँ पे लिखेंगे, सीरियल नंबर, डेट, प्लेस, देन साइन अप फ्लॉक लीडर। इस तरह मिनिमम आपको 8 फ्लॉक मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और कोमल पंख सर्टिफिकेट को यहाँ पे चिपकाएंगे। अभी रजत पंख बैच के लिए लिखेंगे रजत पंख सिलेबस, इसको देख लीजिए, बाद में इसके बारे में हम हर पेज में लिखेंगे। यह सब करना है और अपने लॉगबुक पे लिखना है। Number 1, write the name and address of few important people of your locality. यह कलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। Number 2, prepare the list of given things and write how to care while using these. Brittle things, sharp things, valuable things, how to care. तेज धार वाली या नुकीली चीजें जैसे छुरियां, कांटे, कटर, ब्लेड, चाकू, सुई, पेचकस आदि का सही तरह से उपयोग करके यथास्थान रख देना चाहिए। चाकू, ब्लेड आदि तेज धार वस्तुओं का प्रयोग इस प्रकार न करें कि आप उससे घायल हो जाएं। सभी वस्तुओं को साफ करके यथास्थान रख दें। मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग सावधानी से करें, उन्हें स्वच्छ रखें तथा प्रयोग करके उचित स्थान पर रख दें। Make different things from waste materials. You can make toys, pencil stand, pictures, wall hangings, fan, hanger, dustbin, models of different vehicles. मिट्टी से भी हम बहुत सारे चीज बना सकते हैं, जैसे दवात, कलमदान, बच्चों की गाड़ी, अगरबत्ती स्टैंड, मोमबत्ती स्टैंड, रोटी सेकना, गुलदस्ता, कुर्सी, मेज, और इन सभी को बनाने के बाद उसका एक फोटो यहाँ चिपका सकते हैं। Observe flowers in the garden and collect 8 flowers, paste and label them. अपने आसपास के बगीचे में जाएं, अपने माता पिता का या भाई बहन का मदद ले सकते हैं और अपने आसपास पाए जाने वाले फूलों को यहाँ पे चिपकाएंगे। Write how you will preserve things collected by you. Keep them clean so that these are not spoiled. Keep them properly in a box or in a showcase. इस तरह आप और भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। Tie a seat band and a fisherman knot and show their uses. Draw paste pictures or make by using thread, wool and affix here seat band and its uses, and here fisherman's knot and its uses. उसका फोटो लगाएंगे और नीचे उनके बारे में लिखेंगे। First aid, what you will do in case of small cut, burn, scratches. Good turn in school locality. Name of members, my 6. आपके 6 के सारे बुलबुल्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे। Then you will write good turn in school locality under the supervision of the flock leader. Then take the sign of flock leader. Now it's demonstration. A. Maintain your bed daily for at least a month. आप अपना बेड सजा के रखेंगे, कैसे करके साफ सुथरा रखेंगे वो आपके पेरेंट्स देख के यहाँ पे साइन करेंगे। बी. इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडे का महत्व और झंडे का सम्मान कैसे करना है आप फ्लॉक लीडर को बताएंगे।
C. Sow seeds and grow a plant. Growth may be recorded. Name of the plant. Then week, first week, second week, third week, fourth week, fifth week, sixth week. Length, then new thing observe. इसको आप भरेंगे और कितना लेंथ हुआ, कितना लंबा हुआ पेड़ यहाँ पे भरेंगे आप. और ये कर सकते हैं C. Prepare a bird feeder or a fountain and maintain it for 2 months. इस तरह बर्ड फीडर बना के उसको मेंटेन करेंगे और अपने फ्लॉक लीडर को दिखाएंगे. D. Draw or paint a picture of any subject of your choice. जो ड्राइंग बनाएंगे यहाँ पे उसको चिपकाएंगे. Number E. Trim, peel, light and put up a hurricane lantern. Light a candle with matchstick. Or know the use of emergency light and how to charge it. Draw or affix the pictures of lantern, candle, matchbox, emergency light. लालटेन साफ करना, उसकी बत्ती काटना, उसमें तेल भरना, उसको जलाना व बुझाना आना चाहिए. F. Make a handkerchief and present it to your mother. Write the process of making the handkerchief and paste its picture. कपड़े में एक सुंदर रुमाल बना के उसमें डिजाइन करके अपनी माँ को तोहफा देंगे और उसको कैसे बनाए रुमाल को यहाँ पे लिखेंगे और उस रुमाल का एक फोटो भी यहाँ चिपका सकते हैं. ट्रेल रिपोर्ट. Not less than half a kilometer and not exceed 1 kilometer. Write the date, place, from, to. Report. आपको आधा किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर तक चलना है और वहाँ पे स्काउट के बहुत सारे चिन्ह होंगे, निशान होंगे. उस निशान को देखकर आपको आगे बढ़ना है. Here again write the record of flock meetings attended. Attend at least 8 flock meetings and write. Participate in at least 2 all faith prayer meetings. सर्वधर्म प्रार्थना. इसका क्रम निम्न प्रकार से है. प्रातः स्मरण, सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, रामधुन, जय बोलो, विभिन्न धर्मों की प्रार्थना, मौन प्रार्थना, विसल ओवरकम, सारे देश में तू, शांति पाठ. इनको याद करना है और अपने लॉगबुक पे लिखना है. बच्चों, अभी मैं डॉक्टर मानस रंजन पति सर से अनुरोध करता हूं कि वो आपके सामने सर्वधर्म प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे. प्रातः स्मरण. प्रातः स्मरामि विदुषं स्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः. प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यन्नैति नैति वचनैर्निगमावोचस् तं देवदेव मजमाच्युतमाहुरग्र्यम्. प्रातर्नमामि तमसः परमर्तवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्. यस्मिन्निदं जगदशो समसेशमूर्तौ रज्ज्वा भुजङ्गमैव प्रतिभासितं मे. रज्ज्वा भुजङ्गमैव प्रतिभासितं मे. सरस्वती वंदना. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा
अच्युत शंकर प्रभृति गौरैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेषजाड्यापहा। गुरुवंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय बोलो सत्य धर्म की। जय बोलो सत्य धर्म की। जय बोलो सत्य धर्म की। जय बोलो मानवता की। जय बोलो सब जनता की। जय बोलो सत्य धर्म की। जय बोलो सत्य धर्म की। पिछड़ी कोई न जाती हो सबसे सबकी प्रीति हो। पिछड़ी कोई न जाती हो सबसे सबकी प्रीति हो। देश धर्म से नीति हो हम सबके ही साथी हो। जय बोलो सत्य धर्म की। जय बोलो सत्य कर्म की। हम सब कष्ट उठाएंगे सब मिलकर सुख पाएंगे। हम सब कष्ट उठाएंगे सब मिलकर सुख पाएंगे। सब मिल प्रभु गुण गाएंगे सबका जस फैलाएंगे। जय बोलो सत्य धर्म की। जय बोलो सत्य कर्म की। जय बोलो सत्य धर्म की। जय बोलो सत्य कर्म की। विभिन्न धर्म की प्रार्थना। मूल प्रार्थना 1 मिनट के लिए। कुशल और भक्ति। कुशल भक्ति कुशल भक्ति कुशल भक्ति संगे ओ दीप महान आओ गोविंदे कुशल भक्ति संगे। कुशल भक्ति कुशल भक्ति कुशल भक्ति संगे ओ दीप महान आओ गोविंदे कुशल भक्ति संगे। गुरुवाखंड है गुरुवाखंड है गुरुवाखंड है संगे ओ दीप महान आए गुरुदे कुशल भगवान संगे। कुशलो रीति कुशलो रीति कुशलो रीति संगे ओ दीप महान आए गुरुदे कुशल भगवान संगे। दत्तपुर में कश्मीर दत्तपुर में कश्मीर दत्तपुर में कश्मीर संगे ओ दीप महान आए गुरुदे कुशल भगवान संगे। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid to go.
shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. हर देश में हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा जल होकर के, फिर नदी फिर नहर बना, नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य सिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई और दिखा बस, मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सब खेल में मेल में तू ही तो है। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, अब ये लिखने के बाद इसको भरेंगे। डेट ऑफ ऑल फेथ प्रेयर, ओकेजन एंड सिग्नेचर ऑफ फ्लॉक लीडर। किम्स गेम। Here you have to write date of participation and brief description of the game. Kims game is a game in which a selection of objects must be memorized. आपको बहुत सारे चीज दिखाया जाएगा, आप उन चीजों को याद करेंगे और बिना देखे उनका नाम अपने फ्लॉक लीडर को बताएंगे। 3 R's of conservation, RRR, reduce, reuse, recycle, उसके बारे में आप कॉपी में लिखेंगे। Then fix the certificate of Rajat Pank here. Next, we will write the syllabus for Swarna Pank badge. Syllabus for Swarna Pank badge. Let us see the syllabus. First, write the syllabus in the logbook. Number 1, prepare and present a useful handicraft, preferably for a differently able person in the locality. Affix its picture and write name. Then 8 principal points of compass. Write all 8 directions on given compass. एक चित्र बना के उसका डायरेक्शन लिखेंगे। My village, town. Write your village name or town name
Write the address and contact number of these places. First aid. What you will do in case of sprains, stings, how to clean a wound. You have to write the detail in this page. Good done activity in a public place. Write the report, date, place and paste some photos here. You can see the example. Participation in science games. At least 3 science training games. You have to participate and write how to play. जैसे आप कुछ खेल खेल सकते हो, सूंघो और बताओ, देखो और बताओ, छुओ और बताओ, चखो और बताओ, इस तरह खेल आप खेल सकते हैं. Go on a day hike with your flock. Then write hike report, date, place visited, distance covered. स्काउटिंग में आउटिंग बहुत मजा लगता है. घर से बाहर प्रकृति के बीच में जाकर आपको मौज मस्ती के अवसर मिलेंगे, आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगे और खेल ही खेल में आपकी परीक्षा भी होगी. Habits of cleanliness. Help a younger child in habits of cleanliness. Write a report, name of the child, serial number, rules of health, then date. आपका परम कर्तव्य है कि आप स्वयं स्वच्छ रहें और अपने छोटों से स्वच्छ रहने के लिए कहें. इसलिए हमारे बुलबुल को चाहिए कि वे अपने से छोटे बच्चों को स्वच्छ रहने की आदत डालें. यहाँ पे जैसे लिखा है यूज द टॉयलेट, वॉश हैंड्स. अगर एक बच्चा ये किया यूज द टॉयलेट एंड वॉश हैंड्स, तो आप उस डेट में यस लिखेंगे. इस तरह बाकी एक्टिविटी भी आप उनसे करवाएंगे और अगर वो करेंगे तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर वो नहीं किए तो आप नो लिखेंगे और आप उनको बोलेंगे कि वो अच्छे से सब करेंगे और ताकि आप वहाँ पे यस लिख सकें. कोई भी एक छोटा बच्चा को आप यह सब सिखाएंगे. क्वालिफाई फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफिशिएंसी बैजेस. इनमें से किसी एक के बारे में आप प्रोफिशिएंसी बैज बनाएंगे. ए, ऑब्जर्वर. Train yourself to observe and remember, get into the habit of involving into the environment. Team player. Play your part in the team. May it be a single relay race or an organized game like football, kabaddi, kho-kho, hockey, etc. C. Homecraft. Know how to make things with tools. Entertainer. Produce items up to the standard of the public entertainment. Guide. Help other people. Helping a child or an old person. Computer awareness. Have knowledge of brief history of computer and its latest development. इस तरह आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ बैच, ग्रुप, सिलेबस, रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन. ये पोस्ट 6 काउंसिल का एक सर्टिफिकेट है. ये प्रोफिशिएंसी बैच सर्टिफिकेट. आप उनमें से जब एक को पास करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा. सोशल एक्टिविटीज. एक्टिविटीज रिपोर्ट. एक्टिविटी ए, नो हाउ टू वेलकम एंड रिसीव ए गेस्ट इन ए सोशल वे. राइट द रिपोर्ट हियर. बी, प्रिपेयर एंड सर्व कोल्ड और हॉट ड्रिंक. राइट रिपोर्ट. Then C, prepare a greeting card for special occasion and affix the greeting card here or in the left hand side. 11. Know the woodcraft sign and traffic signs. इस तरह कुछ साइंस आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और कॉपी में इस तरह ड्राइंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. ये भी देखिए some traffic signs, trail signs. Know the rules of road safety as a pedestrian and a cyclist. Write some road safety rules. Record of flock meetings attended. Again write.
Then paste here the certificate of Swarnapank. Next you have to write the syllabus for Hirakpank. This is the syllabus for Hirakpank. Then you will write the report of flock camp, holiday, overnight, date, place, name of LOC, activities, program. बुलबुल को एक रात्रि फ्लॉक अवकाश के रूप में बिताना होता है। ऐसा करने के लिए बुलबुल अपने फ्लॉक के साथ एक रात कहीं बिताएंगे तो उन्हें बड़ा आनंद आएगा। घर से बाहर जाकर उनका मनोरंजन तो होगा ही, इसके अतिरिक्त उनका साहस भी बढ़ेगा और एक साथ रहकर उनका पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा। इसके लिए माता पिता से आज्ञा प्राप्त लेना पड़ता है और अपना सामान लेके रात्रि निवास के लिए निकलना पड़ता है। फ्लॉक एक्सपेडिशन, साहसिक यात्रा। An expedition is a journey for a special purpose such as discovery, collecting new plants, makes a journey purposeful. Write the report here, date and place. साहसिक यात्रा से तात्पर्य है कि ऐसी यात्रा जिसमें हमें नई नई वस्तुओं को खोजने और उनके बारे में जानने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए जंगल में जाकर पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पहाड़ी स्थानों पर जाकर विभिन्न प्रकार के पत्थरों की जानकारी, पुरानी जगह, तालाब, पोखर, नदियां, झरना आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। Prepare knots by using thread, wool and affix here and write uses. दो लाइन, a round turn and 2 half hitches उसको बनाएंगे और यहाँ पे चिपकाएंगे। Information of own saving bank account, एक बैंक अकाउंट आप खोल के उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, जैसे नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और plant the sapling and observe it and write observation report month wise. Participation in a religious function, name of function, place, date, experience. In our country there are several religious functions such as Dasara, Diwali, Holi, Eid, Christmas, Guru Nanak's birthday. You should try to participate in the religious function in your community. Learn something about their customs. Take an active part in the work of the place of worship. Qualify for one of the following proficiency badges not earned earlier. World conservation, that means to know the importance of conserving our natural resources and using them properly. Then first aider, know the simple rules of first aid, be able to treat the cases like burns, scalds, cuts, scratches, shocks, be able to clean a wound and treat it. Then cyclist, bicycling is fun, it is good for you and it is interesting, but cycling can be dangerous if you are not careful, so know the rule first. Then gardener, you will find a great deal of fun to have a garden, either vegetables or flowers. Growing seeds does not mean gardening, but a gardener must know, he should know about the soil, its fertility and kinds of soil, good quality of seeds, water them properly, know how to protect plants from animals and insects. Adya Anna Swai has made this proficiency badge of gardener. Let us see this proficiency badge. The notebook is looking very nice. You can paste some pictures like this and write the information about plants in your garden. Then this is the certificate. Then E,
Write about bookbinder. F. Heritage. G. Free Being Me. Free Being Me project of WAGGGS. What is Free Being Me? Read the paragraph. Free Being Me is an educational program that promotes body confidence and a world free from appearance-related anxiety. What is the World Association of Girl Guide and Girl Scout? This is vision and mission. 7 number. Now write the addresses of 5 guides in the locality. Write the name of guides and their address. 8. Write paragraphs about 2 national heroines, freedom fighters. Write their names and some paragraphs and paste their photos. फ्रीडम फाइटर्स जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख सकते हैं और उनका फोटो चिपका सकते हैं. 9 नंबर. पैराग्राफ्स अबाउट नेशनल फ्लैग एंड भारत स्काउट्स एंड गाइड फ्लैग. राइट ए पैराग्राफ ऑन नेशनल फ्लैग एंड BSG फ्लैग एंड पेस्ट फोटो ऑफ नेशनल फ्लैग एंड BSG फ्लैग. Gain knowledge and practice simple yoga in daily life. Paste some photos and write about them. Affix pictures of some simple yoga asanas. Write the name of asanas. 11. 2 good habits of Tara. Write 2 good habits. Number 1 good habit and number 2 good habit. Examples. Be satisfied with what you have. आपके पास जो है उसी में संतुष्ट रहें. To get happiness, make other people happy. खुशी पाने के लिए दूसरे लोगों को खुश करें. Happiness does not come by possessing gold and jewels, but it comes when you make others happy. खुशी सोना जवाहरात रखने से नहीं आती, बल्कि तब मिलती है जब आप दूसरों को खुश करते हैं. 12. Observe a pet bird or animal and take care of it at least for 3 months. Picture a bird or animal, paste here and write how to care the pet bird or animal. Then write record of flock meetings attended and fix here certificate of Hirak Punk. This is a test card for Hirak Punk testing camp. Qualify any one of the proficiency badge. Area of assessment. Here areas are there. You have to qualify. This is the list of proficiency badges. You have to earn remaining proficiency badges. Golden Arrow badge. A Hirak Punk Bulbul having earned totally 6 proficiency badges, 1 badge each in Swarna Punk and Hirak Punk, remaining 4 badges to be earned from the proficiency badge groups not earned earlier. She may be awarded a special badge called Golden Arrow before completing 10 years of age. The badge will be on blue background with golden border with a prominent golden arrow. You can see the photo. Do your best.